These are the only three things you would be requiring in order to launch and scale your own info business. Info business क्या है? It's a business जो कि आप ऑनलाइन रन करते हो. I'm sure आपको पता होगा कोचेस, कंसल्टेंट्स, मार्केटिंग एजेंसीज, सर्विस बेस्ड बिजनेसेस ऑनलाइन जो होते हैं, these are called info businesses. Now if you are a young person or a person जिसको अपना info business start करके scale करना है, these are the only three things जो आपको अपने mind में रखनी है, and this is exactly how you would be able to scale it in a very efficient manner. So why am I making this video is because recently one of my clients, because we help clients to basically scale their business by working on their sales processes and everything. तो point ये है कि one of my clients, he was like a very experienced corporate individual, almost 2 decades का he had the experience. He was a vice president as well in a company, very renowned company. तो उन्होंने almost 13 महीने से he was running his own info business जहाँ पे he was sharing his skills with the people, right? But after 13 months of staying into the high ticket space, he wasn't able to crack it. And eventually, last month, I mean this month only, couple of days back, he decided कि वो पूरा अपना business model pivot करने वाले to low ticket model, right? Subscription based model to be more accurate. But the problem is ये चीज़ I have found this a very like a common thread जो मेरे बहुत सारे clients face करते. They are not sure कि वो अपना business कैसे scale कर सकते. That is because कि when you are running a business as a one man army, आपका focus बहुत सारी जगहों पे जा रहा है, fulfillment, sales, marketing, etc etc etc. So in order to simplify it, in order to give you like a proper roadmap, that is why I'm making this video, and I'll of course share my experience ki how I am building the two businesses that I'm working right now and what is the process that I am following. So yeah, let's get started. जो three things है, I'll be using different colored markers since we invested in it to make the videos more interactive. So do like नीचे. Okay, it's not opening. तो तीन चीज़ें कौन सी है? There are only three things which you need to basically work on in order to firstly launch a business, and जब scaling भी होगा उसमें भी only three things are required. Number one जो आपको चाहिए होगा सबसे पहले, that would be like an acquisition system. Acquisition या फिर you can say marketing, जहाँ से आप अपने लीड्स लाने वाले हो फॉर द बिजनेस, जहाँ से आपके कॉल्स, क्लाइंट्स वगैरह वगैरह आएंगे. इट कैन बी रेफरेंसेस, फेसबुक एड्स, कुछ भी हो सकता है. बट द फर्स्ट बकेट इज गोइंग टू बी एक्विजिशन एंड मार्केटिंग. पहला चीज़ जिस पे काम करना है इज दिस. सेकेंडली इनके नुआंसेस में भी जाएंगे बट ओवरव्यू फर्स्टली, राइट. सेकेंड चीज़ जो आपको चाहिए होगी दैट वुड बी योर सेल्स सिस्टम या सेल्स टीम. दैट्स द सेकेंड थिंग जो चाहिए बिजनेस स्केल करने के लिए. लास्ट चीज़ जो कि चाहिए होगी दैट वुड बी फुलफिलमेंट. एंड ऑफ कोर्स इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक कम इंपॉर्टेंट है. एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सब कुछ एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है. दैट इज एग्जैक्टली हाउ बिजनेस रन्स, राइट. तो इट वर्क्स लाइक अ ऑर्गेनिज्म आई वुड से. जैसे इंसान में डिफरेंट ऑर्गन्स आर रिक्वायर्ड टू फंक्शन, सिमिलरली. बट दीज आर द टॉप थ्री थिंग्स यू कैन से. जो हमारा ब्रेन, हार्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा होता है मेन ऑर्गन्स, ये बिजनेस के थ्री मेन ऑर्गन्स होते हैं, राइट. नाउ कमिंग टू द मेजर पॉइंट कि एक्विजिशन में सबसे पहले एज अ बिजनेस ओनर अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आपका फोकस कहाँ जाना चाहिए? अकॉर्डिंग टू मी द वेरी फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज गेट इनिशियल क्लाइंट्स, राइट. जिसके लिए आपको एक एक्विजिशन पे काम करना होगा. इनिशियल क्लाइंट्स लाने के काफ़ी तरीके होते हैं. मोस्टली पीपल व्हाट दे डू इज दे आर डिपेंडेंट ऑन रेफरेंसेस. एंड टू बी ऑनेस्ट, लाइक मैंने भी अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया रेफरेंसेस से आई एम गेटिंग क्लाइंट्स, which is good. Of course people know me because इस इंडस्ट्री में I've been here for almost 1.52 years, and of course my partner को भी लोग जानते. तो we are getting references, right? That's the first way to get people. Second way could be like doing outreach. We are actively doing it on LinkedIn right now. Third way could be organic, जो मैं ये वीडियो बना के कर रहा हूँ, basically getting organic reach. And the fourth one, broad category, would be paid media, which is ads, right? सो बेसिकली ये चार तरीके ही होते हैं इन ऑर्डर टू गेट क्लाइंट्स, राइट. इसके अलावा ऑफ कोर्स इसके अंदर ही काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, कोल्ड ईमेल्स, ब्ला ब्ला ब्ला. बट ब्रॉडली ये चार मेन है जिस पे मैं एटलीस्ट फोकस करता हूँ. सो आई विल बी स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ. नाउ कमिंग टू द ब्लैक मार्कर. अब मेनली आपको करना क्या है? इनिशियल बेसिस पे जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, इनिशियल गोल आपका स्टेज 1 होना चाहिए टू स्केल द बिजनेस टू अ कपल ऑफ लैक्स. मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली.
आप अपना रेफरेंसेस या इनमें से कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज़ करो. यू नीड टू चूज़ वन एंड उसके थ्रू ही इनिशियली आपको ईजिली आप 10 लाख तक स्केल कर सकते हो इफ़ यू आर लाइक सेलिंग एट हाई टिकट प्राइसेस. फॉर एग्जांपल 1 लाख का भी बेच रहे हो प्रोडक्ट सर्विस अपना, या फिर 50K का भी बेच रहे हो, ईजिली यू कैन स्केल अप टू 10 lakhs पर मंथ. तो यहाँ पे रेंज जो होगा दैट वुड बी आई वुड से 10 to 15 lakhs यू कैन ईजिली स्केल. अब आपका गोल क्या होना चाहिए यहाँ पे? लुक, यहाँ अगर रेफरेंसेस से लोग आ रहे हैं उनको क्लोज करना इज ईजी, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, दे ऑलरेडी ट्रस्ट यू, राइट. अगर आउटरीच से आ रहे हैं या फिर पेड से आ रहे हैं देन इट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी. बट अगर ऑर्गेनिक या रेफरेंसेस से आ रहे, दे ऑलरेडी ट्रस्ट यू, सुपर सिंपल टू सेल देम, यू जस्ट नीड टू नो एटलीस्ट द बेसिक्स, राइट. तो इतना पे तो आप पहुंच जाओगे पर मंथ. लेकिन इसके बाद जब स्केल करना होता है दैट इज़ व्हेन द रियल चैलेंजेस स्टार्ट ऑकरिंग. क्यों? क्योंकि आप रेफरेंसेस पे डिपेंड करके बिजनेस स्केल नहीं कर सकते. लेट्स से एक महीने 4 आ गए, अगले महीने 5 आ गए, थर्ड मंथ में कुछ भी नहीं आया, हाउ वुड यू स्केल अ बिजनेस? सो उसके लिए यू नीड लाइक अ मोर प्रेडिक्टेबल वे या मोर प्रेडिक्टेबल सिस्टम विच कैन बी डन थ्रू आउटरीच, आई वुड से पेड एंड ऑर्गेनिक एज वेल, राइट. तो उस पर हम बाद में आते हैं. बट द पॉइंट इज इनिशियली आपका गोल होना चाहिए टू सर्व योर इनिशियल 30 to 100 क्लाइंट्स. एंड ये रेंज ऑफ कोर्स डिपेंड्स कि अगर बहुत ज़्यादा लो टिकट है आपका तो 100 क्लाइंट्स चाहिए, वरना 30 इज़ गुड इनफ एट अ हाई टिकट प्राइस. तो इससे होगा क्या कि आपको एक प्रोडक्ट मार्केट फिट का पता लग जाएगा. प्रोडक्ट मार्केट फिट जब मिल जाता है देन यू हैव एक्चुअली गुड डेटा इन ऑर्डर टू स्केल योर बिजनेस इन टर्म्स ऑफ टूवर्ड्स द कोल्ड ऑडियंस. ईजी हो जाता है, आपके पास डेटा, यू नो वॉट टू डू. दैट्स द फर्स्ट थिंग. अगेन निटिग्रिटी एस्पेक्ट्स में हम जाएंगे लेटर ऑन. बट द सेकेंड थिंग विच इज़ द सेल्स पार्ट. अब sales, what we recommend is, because this is like the core expertise which I possess, sales अगर आप एक one man army हो, founder हो, you should do sales at least for the initial couple of months of your business. मोस्टली फाउंडर्स का होता है कि नहीं सेल्स कौन करेगा, कॉल पे कौन जाएगा, ये कौन करेगा. बट देर इज़ अ वेरी सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस. अगर आप लेट्स से अपना एक हाई टिकट प्रोडक्ट लॉन्च किया आपने एंड आपने खुद आज तक उसको बेचा नहीं है, राइट, रेफरेंसेज में या फिर कोल्ड ऑडियंस में, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि आप एक क्लोजर को लेके आओगे एंड वो क्लोजर बिजनेस ओनर से बेटर बेच लेगा ऑन अ कॉल? दैट्स नेवर गोइंग टू हैपन. एंड टू गिव यू लाइक अ वेरी सिंपल स्टैट्स व्हाट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज, अगर लेट्स से एज अ बिजनेस ओनर आप 30% क्लोज कर रहे हो, क्लोज टू कन्वर्जन रेट अगर आपका 30% है, तो आपके जो क्लोजर्स होंगे उनका हाफ होगा उसका, दैट इज 15%. तो दैट इज वाई वेन एवर वी वर्क विथ एनी बडी, हमारा मेन एम होता है कि जो मेन पर्सन है, फाउंडर है, उसका सेल्स पहले रैम्प अप करे so that he can get the POC very faster, which is the product market fit. वो अपने स्टार्टिंग के 30-100 क्लाइंट्स लेके आए जल्दी से सेल्स ला के, एंड ऑफ कोर्स उनके लिए बेचना ईजी है बिकॉज ही ऑलरेडी हैज़ द कन्विक्शन. उन्होंने ही प्रोडक्ट बनाया है, सर्विस बनाया है, दे नो व्हाट दे आर सेलिंग, राइट. तो दैट शुड बी द गोल. इनिशियली यू डू नॉट नीड टू हायर एनी बडी, राइट. जब तक आपका अपना कन्वर्जन रेट 30% नहीं है एज अ फाउंडर, डोंट हायर एनी बडी, क्योंकि आपका क्लोजर आके आपसे बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएगा. दैट इज़ लाइक मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में यही होता है. अब एज अ बिजनेस ओनर आपको लगता है सेल्स कॉल में जाएंगे, मेरा टाइम नहीं है, मेरे को फुलफिलमेंट करना है, मार्केटिंग देखना है, सब कुछ भूल जाओ. दिस इज़ द मेजर थिंग दैट यू नीड टू फोकस ऑन. बहुत बोरिंग है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, बहुत रिजेक्शन लेना पड़ता है, बट वेलकम टू बिजनेस, दैट इज़ वॉट बिजनेस इज. तो 30% एटलीस्ट आपका होना चाहिए एंड आपके पास एटलीस्ट एक पूरा POC का डॉक्यूमेंट होना चाहिए. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? लेट्स से कि आप किसी को आगे लेके आओगे, क्लोजर को, उसको कोई ऑब्जेक्शन मिल गया, वो आपसे आके गाइडेंस ले रहा है, बट अगर आपने ही आज तक कॉल नहीं ली अपने मार्केट में, इफ़ यू डू नॉट नो अबाउट योर मार्केट प्लेस, आप उसको कैसे गाइड करोगे? देन आपका सिर्फ जेनेरिक एडवाइस आएगा विच वुडंट हेल्प यू और द क्लोजर और द बिजनेस. दैट इज़ वाई वी आस्क पीपल टू इनिशियली एटलीस्ट 2-3 महीने तो दबा के सेल्स करो, क्योंकि दैट इज़ हाउ योर बिजनेस विल ग्रो. अब इससे होगा क्या कि आपके पास एक विनिंग कॉल्स का पूरा एक डॉक्यूमेंट बन जाएगा जो कि आप अपने नए हायर को दे सकते हो एंड बोल सकते हो कि यू नो गो थ्रू दिस, ये मेरे विनिंग कॉल्स है, दिस इज़ हाउ कॉल्स आर कंडक्टेड इन माई इंडस्ट्री फॉर माई सर्विस, दिस इज़ द ऑब्जेक्शंस, ये प्रॉब्लम्स होते लोगों के, ऐसे डिग आउट करना है, ऐसे पेन प्रोबिंग करनी है, ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडल करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो वो एक लाइब्रेरी आपके पास बन जाएगा विच यू कैन ऑफकोर्स इज आई वुड से वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि कोई भी न्यू हायर आएगा यू कैन जस्ट शो दैम. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एक क्रेडिबिलिटी भी बिल्डअप होती है इन योर क्लोजर्स आइज फॉर यू.
नाउ ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ लॉट ऑफ पीपल जो वीडियो देख के बोल रहे होंगे नॉट ज़रूरी नहीं है शशांक सेल्स करना एज अ फाउंडर, बिकॉज माई कोर स्ट्रेंथ इज़ मार्केटिंग और माई कोर स्ट्रेंथ इज़ फुलफिलमेंट। तो ज़रूरी नहीं है कि सेल्स नहीं आता तो कोई मुझे लाइक दे वुडेंट रिस्पेक्ट मी, राइट? बट वॉट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन द इन्फो बिजनेस फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, दिस इज लाइक अ पर्सनल ओपिनियन, जब तक फाउंडर खुद सेल्स नहीं कर सकता तब तक लाइक ग्रोइंग द बिजनेस इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, राइट? अगर आप एलेक्स हॉर्मोजी को करते हो फॉलो, यू नो ही इज अ सेल्स पर्सन। अगर आप पीबीडी पैट्रिक बेट डेविड ऑफ वैल्यूटेनमेंट उसका देखते हो कंटेंट, ही स्टार्टेड विद सेल्स। अगर आप गैरी वी को देखते हो, ही स्टार्टेड विद मार्केटिंग एंड सेल्स। तो जितने भी बड़े नेम्स है यू वुड ऑलवेज सी कि उनका एक कोर स्ट्रेंथ होता है विच इज दे नो हाउ टू सेल। ग्रैंट कार्डोन देख लो, अभी भी सेल्स में है, राइट? सो दैट इज द मेन पार्ट, आपको सेल्स आनी ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू मी, एंड दैट एक्चुअली हेल्प्स यू टू बिल्ड दैट अथॉरिटी एज वेल इन फ्रंट ऑफ योर टीममेट्स। क्योंकि मार्केटिंग तो ठीक है बट अगर कोई बेचने वाला ही नहीं होगा तो कैसे बेचोगे, राइट? सो दैट इज द सेकेंड पार्ट सेल्स। इसमें विल गो इन टू डेप्थ कि क्या प्रोसेस होना चाहिए। लास्ट पार्ट पे आते हैं फुलफिलमेंट। लेट्स क्विकली कवर दिस। फुलफिलमेंट इज प्रीटी सिंपल, नाम से ही पता लग रहा होगा कि लेट्स से आपके क्लाइंट्स आ चुके हैं, अब उनका ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस क्या होगा, बेसिकली वो आपको डिसाइड करना होगा। एंड बेसिकली आप उनको जो सर्विस है वो कैसे प्रोवाइड करोगे, दैट इज द फुलफिलमेंट पार्ट, सर्विस प्रोवाइडिंग, राइट? तो अगेन जिस चीज़ के लिए पैसे लिए, नाउ यू हैव टू प्रोवाइड दैट सर्विस, दैट इज कॉल्ड फुलफिलमेंट। नाउ लेट्स कम टू द मेन थिंग कि चैलेंज क्या था लोगों का। अब ये तीन चीज़ें ब्रॉडली, राइट? अब जो फाउंडर है वो सोचता है कि अगर तो मैं सेल्स पे बैठा हूँ तो मुझे 3 कॉल्स लेने होंगे दिन के, राइट? विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 आवर्स ऑफ माई टाइम। उसके बाद मेरे पास जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उनका फुलफिलमेंट भी मुझे 1-on-1 करना है, तो उसमें मेरे सेशंस में टाइम चले जाएंगे। ऑन टॉप ऑफ दैट मेरे को फिर मार्केटिंग भी सॉर्ट करके रखना है, क्योंकि न्यू लीड्स आएंगे नहीं तो बिजनेस ग्रो नहीं होगा। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली जहाँ पे मेजॉरिटी लोग फंस जाते हैं कि अब बिजनेस को ग्रो कैसे करें, क्योंकि दे आर बेसिकली बहुत ज़्यादा थिन वायर पे चल रहे हैं, उनको पता नहीं कहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करना है। तो व्हाट वी रेकमेंड इज प्रीटी सिंपल, दिस इज माई पाथवे, दिस इज व्हाट आई एम फॉलोइंग। सबसे पहले व्हाट आई वुड वांट टू डू ओवर हियर इज गोइंग टू बी सॉर्टिंग आउट योर एक्विजिशन, राइट? क्योंकि देखो रेफरेंसेस तो आपके आ रहे हैं, उनको कन्वर्ट करना ईजी है, नॉट अ बिग चैलेंज, एंड आपका वहाँ पे थोड़ा सेल्स का डेवलपमेंट हो ही जाएगा, आप सीख जाओगे थोड़ी बहुत सेल्स के बारे में इफ़ यू आर एक्टिवली लर्निंग इट, राइट? तो फर्स्ट थिंग दैट आई वुड वांट टू डू इज सॉर्ट आउट योर एक्विजिशन। करने के दो तरीके, या तो खुद कर लो या फिर यू कैन बेसिकली हायर समबडी या आउटसोर्स इट टू समवन। व्हाट आई डिड फॉर माई एजेंसी, मैं अपना पर्सनली शेयर करता हूँ सो दैट यू कैन रिलेट मोर। व्हाट आई डिड इज आई एम डिपेंडेंट करेंटली ऑन रेफरेंसेज एंड आउटरीच मेजरली। ऑर्गेनिक से कुछ होता नहीं है अभी ऑनेस्टली, तो मेन तो रेफरेंसेज एंड आउटरीच ही है जहाँ से वी आर गेटिंग क्लाइंट्स। तो फॉर रेफरेंसेज इट्स प्रीटी सिंपल, वी हैव कनेक्शंस, तो वी आर पोस्टिंग रेगुलर कंटेंट ऑन लिंक्डइन। तो मेरा जो मैंने प्लेटफॉर्म पकड़ा हुआ है बिकॉज ऑडियंस वैसी है मेरी, तो इट इज़ दे आर बेसिकली फाउंड ऑन लिंक्डइन, राइट? तो यहाँ पे मेरा अगर आप जाके देखोगे आई एम सुपर एक्टिव ओवर देयर, मेरा रेगुलरली पोस्टिंग चलता रहता है यहाँ पे, 5 पोस्ट एवरी सिंगल वीक मेरा जाता है ऑन लिंक्डइन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट मेरा एक आउटरीच भी चल रहा है ऑन लिंक्डइन, जहाँ पे आई एम रीचिंग आउट टू पोटेंशियल क्लाइंट्स। उसके लिए आई हैव टेकन द सेल्स नेविगेटर। सो दिस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट वीडियो बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल एरर। तो आई वाज टेलिंग यू अबाउट माय प्रोसेस, राइट? मेरा प्रोसेस है कि आई बेसिकली पोस्ट ऑन लिंक्डइन, आई हैव गॉट सेल्स नेविगेटर, वहाँ से आउटरीच चलता है, एंड वी हैव बेसिकली outsource this part to like a person who is our like LinkedIn manager. तो दे टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, पोस्टिंग, आउटरीचिंग, उनको लाना कॉल्स पे, एवरीथिंग ऑल दैट जैज। तो यहाँ से आई हैव बेसिकली सेव्ड अप माई टाइम ताकि आई कैन डिवोट इट टूवर्ड्स सेल्स एंड फुलफिलमेंट, क्योंकि तीनों करने जाओगे एक साथ इट्स गोइंग टू बी टफ, इट इज़ बाउंड टू बी टफ, राइट? होना ही चाहिए टफ, बिजनेस बना रहे हो, राइट? सो इट्स नॉट ईजी टू मेक मनी 10 लाख 20 लाख, इट इज़ ईजी अगर आपके पास सिस्टम्स हो। सो दैट इज़ वॉट आई एम डूइंग यहाँ पे फॉर लिंक्डइन। फॉर नाउ मार्केटिंग का एक सिस्टम बन गया। फॉर सेल्स दिस इज़ वेयर आई गिव माई मेजर टाइम, क्योंकि दैट्स आर मेन एक्सपर्टीज़, यही हम लोगों को सिखाते हैं। तो वी आर वेरी कंफर्टेबल सेल्स कॉल में जाने के लिए, आदत लगी हुई है वो। तो वी आर वेरी कंफर्टेबल मेकिंग लाइक 5 ऑफर्स इन अ डे एज वेल। तो सेल्स इज़ वॉट वी आर टेकिंग केयर ऑफ। अभी बहुत
क्रेजी वॉल्यूम में कॉल्स नहीं आ रहे, हफ्ते में लाइक 5 कॉल्स 6 कॉल्स 10 कॉल्स ऐसे हो जाते हैं हमारे अभी. तो दैट इज़ व्हाट वी आर टेकिंग केयर ऑफ. एंड सेकेंडली व्हाट वी टेक केयर ऑफ इज़ द फुलफिलमेंट, जहाँ पे अभी तो वी आर स्पेंडिंग टाइम 1-on-1, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं है अभी, लिमिटेड क्लाइंट्स है, सबको 1-on-1 लाइक वी गो एंड वी बेसिकली टीच देम. अब इसको स्केल कैसे करेंगे, क्योंकि विद वन क्लाइंट लाइक वी गिव देम लाइक 3 सेशंस ऑफ 1 hour एवरी वीक. तो हम लोग बेसिकली ऑल्टरनेट डेज कर लेते हैं क्लाइंट्स को, कि लेट्स से कि मॉर्निंग में 2 क्लाइंट्स आ गए, शाम में 2 आ गए, फिर नेक्स्ट डे नए 2 क्लाइंट्स आ गए. तो ऑल्टरनेट डेज के हिसाब से वो ईजिली मैनेज हो जाता है. एंड इवेंचुअली लेट्स से कि 20-30 क्लाइंट हो गए जब, देन मैं 10 को संभाल लूँगा, मेरा जो पार्टनर है ही कैन बेसिकली हैंडल 10 पीपल. तो वो वहाँ से सिस्टम बन जाएगा. फिर लेटर ऑन और स्केल करना होगा, वी कैन हायर अ फुलफिलमेंट पार्टनर जिसको हम ट्रेन कर सकते हैं, देन दे कैन हैंडल 10 मोर क्लाइंट्स, राइट. उसके बाद इफ़ वी वांट टू स्केल इवन फर्दर, देन इट इज़ द पॉइंट जहाँ पे हम इसको प्रोडक्टाइज्ड वर्जन में बना देते हैं, कि जो बेसिक चीज़ है उसका लर्निंग का पूरा एक कोर्स टाइप बना दिया है, ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म. बिजनेस ओनर एंड द टीम कैन गो थ्रू दैट. एंड फिर जो कोचिंग सेशंस होंगे वो अलग से होंगे, वेयर दे वुड बी 1-on-1 सेशंस आइदर विद द फुलफिलमेंट कोच और विद अस. तो वहाँ पे सेम चीज़ें उनको बार बार हमें 1-1 घंटा दे के समझाने की ज़रूरत नहीं. इट्स ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड, गो थ्रू इट. दैट इज़ हाउ यू कैन स्केल द बिजनेस टू 50 lakhs एंड बियॉन्ड, राइट. बट उसमें अभी टाइम है, राइट. So that is how you systematize things for your business. The keyword that I want you to take from this video, it would be creating systems. If you know how to create systems in a business, you are Gucci. तभी आप scale कर पाओगे. That is how you would be able to sustain. Otherwise burnout हो जाएगा. That is exactly, जैसे I was telling you the story, that's exactly what happened with my client. He gave his level best, 13 months non-stop. He was taking care of all the 3 things. हायर भी किया हुआ था उन्होंने लोगों को, बट फिर भी ही वॉजेंट एबल टू सिस्टमेटाइज थिंग्स. कुछ प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं आ पाई थी बिजनेस में. एंड जब तक वो प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं आएगी, देयर इज अ टर्म, वेरी गुड टर्म कॉल्ड कन्वेयर बेल्ट. तो आपका जो बिजनेस है, इट शुड बी लाइक अ कन्वेयर बेल्ट. आपका गोल है कि आपको एक कन्वेयर बेल्ट बनाना है, जैसे फैक्ट्री में होता है कि यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है एंड वहाँ से फिनिश्ड प्रोडक्ट निकल के आ रहा है डायरेक्टली, राइट. तो वो होता क्या, कन्वेयर बेल्ट होता है. सिमिलरली आपका भी यही होना चाहिए कि मार्केटिंग का एक कन्वेयर बेल्ट है, कि आपके ये इनपुट्स जा रहे हैं, या तो आप डाल रहे हो या कोई पर्सन हायर किया हुआ है, ही इज़ गिविंग सेम इनपुट्स, या एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ इनपुट टू गेट एक्स अमाउंट ऑफ आउटपुट. तो वो एक प्रेडिक्टेबिलिटी आ गई है सिस्टम में, वो एक कन्वेयर बेल्ट बन गया. सिमिलरली फॉर सेल्स एज वेल, आपको पता है कि अगर इतने कॉल्स बुक हो रहे हैं तो इतना मेरा क्वालिटी रेट है. लेट्स से 100 कॉल्स बुक हुए इन अ मंथ, उनमें से ओनली 30% इज क्वालिटी अकॉर्डिंग टू डेटा. तो 30% वो क्वालिटी टू एक्चुअली गेट ऑन अ सेल्स कॉल विद, राइट. उन 30 में से लेट्स से कि आपका शो अप रेट इज 50% वर्स्ट केस, तो सिर्फ 15 लोग के साथ कॉल हो रही है. अब योर गोल इज टू मेक ऑल द 15 ऑफर्स, राइट. 15 लोगों को ऑफर मारो एंड एट अ 20% कन्वर्जन रेट आपके पास आ जाएंगी इजीली 3 to 4 सेल्स, राइट. तो अगेन प्रेडिक्टेबिलिटी इन द सिस्टम कब होगा, व्हेन यू हैव अ कन्वेयर बेल्ट, या फिर यू हैव डेटा. बेसिकली you need to backtrack everything. that is how you run businesses. business में जब तक आप डेटा ट्रैक नहीं कर रहे हो, you won't be able to do any of these things, right. similarly fulfillment में अब आपके पास एक नया क्लाइंट आ रहा है, राइट. उसका भी सेम प्रॉब्लम है. आपको पता होना चाहिए कि सेशन 1 में ये होगा, फिर इसका ये सॉर्ट करेंगे, फिर ये, एंड आपके एक पूरा प्रॉपर गेम प्लान होना चाहिए. वाई, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू, आपके इनिशियल क्लाइंट्स तो ऑलरेडी हो ही गए होंगे 3-4 क्लाइंट्स, राइट. तो यू नो कि मेन प्रॉब्लम्स क्या है, उनको नेविगेट कैसे करना है. तो मेक अ सिस्टम आउट ऑफ इट, ताकि जब फुलफिलमेंट के लिए किसी को हायर करो तो इट्स ईजियर फॉर देम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप तो एक्सपर्ट हो ऑन योर सर्विस, राइट. बट जो आएगा, ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट और शी इज़ नॉट एन एक्सपर्ट. तो उसके लिए आपको एक लाइक SOP बनाना होगा. यू विल हैव टू क्रिएट एन SOP और अ कन्वेयर बेल्ट. एक सिस्टम बनाना होगा कि ये ऐसे 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 करके XYZ थिंग्स होते हैं, एंड अगर ये प्रॉब्लम आ रहा है इसको ऐसे सॉल्व करना है, ये चैलेंज आ रहा है इसको ऐसे सॉल्व करना है. अगेन स्केलिंग अ बिजनेस, बिफोर स्केलिंग एनीथिंग, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मार्केटिंग में पैसा डाल दो, लीड्स आ गई, अपने आप स्केल हो जाएगा. एवरीथिंग विल इवेंचुअली ब्रेक डाउन अगर आपके पास सिस्टम्स नहीं है. तो विदाउट सिस्टम्स एक पॉइंट तक आप हिट कर पाओगे, उसके बाद यू वोंट बी एबल टू ग्रो बियॉन्ड दैट. तो द की टेक अवे आई वुड से, लर्न टू सिस्टमेटाइज योर बिजनेस, क्रिएट कन्वेयर बेल्ट्स, mini conveyor belts for all
3 of them, right? Eventually आपको यहाँ से भी निकलना है. Replace yourself, hire sales people, उनको भी proper scripts दो, उनको बताओ कि this is how it works. Processes set करो, standard operating procedures, SOPs basically. It's a boring word, but since I have started business, तब से understood the importance of systems and SOPs. So yeah, similarly with fulfillment. So if you found this video helpful, तो like button दबा दो, subscribe to the channel for more business related content for future. And if you are somebody जो कि info business scale कर रहा है अपना in India, coach consultant or any service provider, then of course notification bell be on कर लो, because this would really help you out. I'll see you in the next video. Until then, have a good day.